Hello everyone, my name is Anjali and today I will be teaching you chapter number 5 from 9th NCERT textbook, and the chapter's name is The Snake and the Mirror, which is written by Vaikom Mohammad Bashir. So let me tell you story in short first. ये जो स्टोरी है वो एक डॉक्टर के बारे में है जो उनके जो ओल्ड डेज़ के बारे में वो स्टोरी बता रहा होता है। तो उसमें डॉक्टर बताता है कि कैसे वो यंग था और एक छोटे से रेंटेड कमरे में रहा करता था जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, वो बस एक खाली कमरा था जहाँ पे एक मिरर था, बड़ा सा वॉल मिरर। और एक दिन शाम को जब वो काम करके घर पर आया तब उसका सामना एक स्नेक से हुआ और वो स्नेक से कैसे बचता है, कैसे वो क्या सोचता है, उस बारे में ये स्टोरी है। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द समरी ऑफ द स्टोरी. This is the snake and the mirror summary, which is story within a story. In this story, a writer tells a story which he himself heard from his homeopathic doctor. Furthermore, this story revolves around two aspects, the snake and the mirror. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस स्टोरी में एक बड़ा सा वॉल मिरर था और एक स्नेक था जिसके बारे में ये स्टोरी है, जो डॉक्टर को पता चलता है कि उसके घर में स्नेक आ गया है, उस पर गिरा हुआ है स्नेक, उसके बारे में ये स्टोरी है. Moreover, in this story, Doctor reflects on a day in his youth when he was unmarried. The doctor enters his room on a hot summer night and then he indulges in a deep thinking. In the midst of it, the doctor had a sudden encounter with a snake as it fell on the doctor. The doctor went into shock, but soon the snake saw its reflection on mirror nearby and made a move towards it. It seems that the snake was more interested in his own reflection than the doctor. Consequently, the doctor's life was saved. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर पर स्नेक गिरता है एक दिन रात को, और जब डॉक्टर अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है कि जब वो यंग हुआ करता था, व्हेन ही वाज अनमैरिड, तब वो अपने बारे में सोच रहा ही होता है कि स्नेक उस पर आकर गिरता है, बट उसकी जान बच जाती है क्योंकि स्नेक अपना खुद का रिफ्लेक्शन मिरर में देखता है और मिरर की तरफ जाने लगता है. तब डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और इस वजह से डॉक्टर की लाइफ सेव हो जाती है. So now let's start the main story, but here's important information that all the words which are really hard to understand and very complicated, I have mentioned their meanings after the story in the blue font, so it's easy for you to know meaning of the word. So now let's start the story. This is a story about a homeopathic doctor during his early career days. The narrator of this story is the doctor himself, where he narrates his story to some individuals. In this story, the doctor tells us that he lived in a small rented room during that time. Furthermore, the tiles of the room were supported by gables, which is in turn were supported by beam. Moreover, rats were roaming all over the room and there was no electricity supplies. Hence, the room was in a dire state. जैसा इसमें बताया है कि जो डॉक्टर है वो खुद अपनी स्टोरी बता रहा होता है, और इसमें ये बताया है कि जो डॉक्टर है वो एक छोटे से कमरे में रहा करता था, एक रेंटेड कमरे में, जिसकी हालत बहुत ख़राब थी, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज नहीं थे. गेबल का मतलब है ट्रायंगल अपर पार्ट ऑफ अ वॉल एट द एंड ऑफ अ रिजिड रूफ. जो एक ट्रायंगल पार्ट होता है जो रूफ़ को सपोर्ट करता है, रूफ़ को होल्ड करता है, वो गेबल था. जो खुद भी टूटा हुआ था, उसे सपोर्ट करने के लिए बीम था, अ लॉन्ग स्टडी पीस ऑफ स्क्वायर टिम्बर और मेटल यूज टू सपोर्ट रूफ और फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग. एक जो छोटा सा पार्ट होता है उसे सपोर्ट करने के लिए रखा हुआ था ताकि वो गिर ना जाए. इतनी पुरानी बिल्डिंग थी वो, और वहाँ पे कुछ भी सुविधाएं नहीं थी, कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी या अच्छे से रहने के लिए फर्नीचर या कुछ नहीं था. वो बस एम्प्टी रूम था जहाँ पे एक बड़ा सा वॉल मिरर लगाया हुआ था. In the doctor's story, it was the summer season going on and it was night. The doctor came back to his room after finishing his meal at the restaurant. The room was certainly dark due to lack of electricity.
As such, the doctor made use of kerosene lamp to light up his room. The doctor also took off his coat and shirt. तो डॉक्टर है जो एक दिन शाम को अपना काम ख़त्म करके अपना खाना बाहर रेस्टोरेंट में खाकर घर पे आया होता है और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो जैसे पुराने ज़माने में जो कैरोसिन बल्ब्स हुआ करते थे, जो लैंटर्न्स हुआ करते थे, जैसे कैरोसिन से लाइट मिलती थी कैरोसिन को जलाकर, वैसा ही एक लैंप उनके पास था। तो उससे उस रूम में ब्राइटनेस आई। उसने वो लैंटर्न जलाया और अपना जो कोट और शर्ट है वो निकाल के वहाँ बैठ गया, सोचने लग गया सब कुछ। There was 2 windows in the room that were opened by him. After sitting on chair, the doctor took a medical book to read. On the table there was a large mirror and a lamp. तो जैसा मैंने बताया कि वो बैठ गया शांति से, खिड़कियाँ विड़कियाँ खोल कर सोचने लगा और उसने अपनी जो मेडिकल बुक है कुछ स्टडीज़ करने के लिए वो बुक निकाल दी। और घर में कुछ भी नहीं था, जो एक टेबल था उस पर लैंप था और एक बड़ा सा मिरर था। Due to immense summer heat, it was too hot for doctor to sleep, so he began to gaze in mirror and become lost in admiring himself. Furthermore, while admiring himself, a desire came in him to look more presentable. Gradually, there was shifting of his thoughts from self-admiration to future marriage. The doctor thought of marrying a rich doctor who was rich and fat. तो जब डॉक्टर बैठ गया तब उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और समर टाइम था, तब तो और भी ज़्यादा गर्मी हो जाती है और हम सो नहीं पाते। तो वैसे ही वो डॉक्टर भी नहीं सो पा रहा था और वो बैठ गया और ख़ुद को मिरर में देखकर ऐसे एडमायर करने लगा, देखने लगा कि मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, मैं कितना हैंडसम हूँ, माई हेयर आर गुड एंड एवरीथिंग। और वो सोचने लगता है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। ही इज़ थिंकिंग अबाउट हिज फ्यूचर दैट ही विल मैरी अ रिच डॉक्टर एंड सो इसी बारे में वो सोच रहा होता है, वो देख रहा होता है मिरर में, खुद को निहार रहा होता है। द डॉक्टर डिडेंट पे मच अटेंशन टू सडन साइलेंस एंड scampering from the rats came to the halt. Furthermore, there was a sound of something falling, but doctor was slow to react. By the time he had to look, there was a snake wriggling on the back of his chair. तो वो इतना खो जाता है अपने आप को देखने में मिरर में कि वो भूल जाता है कि कुछ आवाज़ें आ रही है, कुछ रैट्स की आवाज़ें आ रही है, कुछ चीज़ें रेंग रही है, ऐसी आवाज़ें आ रही है। तो तभी उसको पता चलता है कि एक स्नेक जो है उसकी बैक, जो चेयर है उसकी बैक में लगा हुआ है और वो ऊपर चढ़ रहा है धीरे धीरे। Soon the snake coiled on the left arm of the doctor. The snake was merely inches away from his face. तो जो स्नेक है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा होता है और डॉक्टर का जो लेफ़्ट आर्म है वहाँ ऐसे गोल गोल घूमता हुआ चढ़ रहा होता है और वो डॉक्टर के फेस से बहुत ही नज़दीक आ गया होता है, बहुत कम डिस्टेंस बाकी रह गया है उन दोनों के बीच में। So consequently the doctor went into deep shock and became like a statue. At this moment the doctor felt the presence of God. It seems that this snake was like a punishment from God to doctor due to his being too arrogant. Soon he came to realization that he a mere human and he should not boast. तो इसमें जो बताया है कि डॉक्टर एकदम शॉक में आ जाता है स्नेक को देखकर और वो बिल्कुल हिलता नहीं, वो स्टैच्यू की तरह बैठा रहता है ताकि स्नेक उसे बाइट ना कर दे। और मन में वो ये सोच रहा होता है कि ये पनिशमेंट है उसकी गॉड की तरफ से, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो गया होता है, काफ़ी ज़्यादा स्वाभिमानी हो गया होता है खुद को मिरर में इस तरह से देखकर। इस वजह से वो सोचता है कि गॉड ने उसे पनिश किया है स्नेक के साथ। At this realization of his true worth, the snake left the doctor and moved towards the mirror. As such, the doctor silently escaped and his life was saved. After the conclusion of doctor's narrative,
Some interested listeners asked him some question related to the story. तो जैसे कि डॉक्टर है, उन्होंने खुद को मिरर में देखा, तब वो इतना ज़्यादा एरोगेंट हो गया था, खुद को देखता ही रह गया था। वैसे ही स्नेक के साथ भी होता है। जब स्नेक अपना खुद का रिफ्लेक्शन मिरर में देखता है, तब स्नेक मिरर की तरफ बढ़ता है ज़्यादा नज़दीक से देखने के लिए, और वो डॉक्टर को छोड़ देता है। तो डॉक्टर धीरे से उठकर वहाँ से चला जाता है। सो इस तरह से डॉक्टर की लाइफ सेव्ड हो जाती है, और जो स्नेक है वो अपना रिफ्लेक्शन मिरर में देखने के लिए जाता है, उस चक्कर में डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। द कंक्लूजन ऑफ द स्नेक एंड द मिरर इज़ द स्नेक एंड द मिरर समरी टीचेस अस दैट वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ आवर सेल्व्स एंड वॉट एवर वन हैज़ इज़ ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड। तो ये जो पूरी स्टोरी है उसका मॉरल यही है, हमें ज़्यादा प्राउड नहीं होना चाहिए, हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए किसी चीज़ के लिए। हमें जो भी मिला है वी शुड थिंक एज इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, और जो भी है वो हमारा है, हमारी मेहनत से है, हमें ज़्यादा प्राउड नहीं होना चाहिए। इसी बारे में ये स्टोरी है, ये लेसन है कि जैसे स्नेक और डॉक्टर दोनों ही मिरर के रिफ्लेक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो गए थे। सो आई होप यू एन्जॉयड दिस स्टोरी। थैंक यू।